How am I ever going to get my first credit card? I have no loans. I'm 22. I'm sorry. I just want a credit card, bro. Relatable thing I see that most people say. It's like getting your first job ना. अभी job के लिए इन लोग experience मांग रहे हैं. Chicken and egg situation बन जाता है. It's literally the same chicken and egg situation. There should be no tax on income. At 1.4 billion consumer, flat 5% indirect tax is more than enough. It's just that you need to end corruption. Not agreeing with that. Corruption has reduced. 2008 से मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ and we are right now in the one of the best tax system in India. Technical analysis is a tool to measure risk-reward ratios, not predict. 100% राइट। और ये मेरा दोस्त ही है। Oh! हाँ, वैसे दोस्त है इसलिए 100% राइट नहीं बोला है, बट इसकी ये बात में सच बात है। The entire generation has been brainwashed to believe that saving money in their 20s to build 1 CR portfolio at the age of 60 is a good idea. पहले तो मैं कहूँगा 1 करोड़ कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 इटसेल्फ इज वेरी बैड। बहुत मुश्किल है बिकॉज आप उस पर नहीं सर्वाइव कर सकते। आज के टाइम में आप 60 पे 1 करोड़ नहीं कर सकते तो फ्यूचर में तो 1 करोड़ पे तो आप नहीं कर सकते। बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है स्टॉक मार्केट। कोरोना में कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते करते स्टॉक मार्केट करने लगे। उन्हें ये समझ में लगा कि जितनी कंपनी सैलरी दे रही है उससे ज़्यादा तो मैं खुद कमा रहा हूँ। बट जब मार्केट डाउन जाता है तब समझ में आता है कि जो काम कर रहा था वही ठीक है, ये मेरा काम नहीं। इतना आसान भी नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। Save all your life. Live like a miser. Don't drink at Starbucks. Don't wear branded clothes. Don't go to fancy places. Save every rupee and invest that in stocks and mutual funds. कुछ भी। सब लोग ऐसा सोचेंगे तो कंज्यूम कौन करेगा? घर एक होना चाहिए खुद का। रेंटल ईल्स आई नो पीपल से, बट ये सब थियोरी होती है, अच्छी चीजें होती है, लेकिन जब खुद पे आती है तो हम बोलते हैं यार एक घर हो जाए। इफ यू आर स्मार्ट बाय 1 हाउस, इफ यू आर रिच बाय 2, एंड इफ यू आर अ फूल गो फॉर द 3rd। Love it. ये ट्वीट है ना, ट्वीट पे कोई कुछ भी लिख सकता है। Welcome to this very cool episode. We have a super fun game. इसका नाम है Finance Hot Takes. मैं आपको कुछ tweets दिखाऊंगी, आपको उन पे react करना है. ओके Are you ready? Sure, let's do it. Okay, amazing. Let's get started. How am I ever going to get my first credit card? I have no loans. I'm 22. I'm sorry. I just want a credit card, bro. Relatable thing I see that most people say. It's like getting your first job ना. अभी job के लिए इन लोग experience मांग रहे हैं. Chicken and egg situation बन जाता है. It's literally the same chicken and egg situation, and the only way to get it is once you get your first fixed income salary, you just have to get a credit card based on whatever bank you have where your salary is coming, because they know कि salary उनके account में ही आ रहा है. They know you have a stable income, right? And that's when you get a first card directly from the bank where you're getting your salary. अभी at this point do not be picky कि अच्छा इसमें reward rate क्या है, इसमें मिंत्रा का cashback है, जोमेटो का बुक माई शो मूवी मिलेगा. Don't think about all that. Think about that 3 months later जब आप एक credit card लेके थोड़ा spend करके फिर आप कोई credit card apply करोगे, you'll get approved. And if you have a freelance job or something, yes, you have to get an FD backed credit card. FD backed cards for freelancers. Yeah. The entire generation has been brainwashed to believe that saving money in their 20s to build 1 CR portfolio at the age of 60 is a good idea. पहले तो मैं कहूँगा 1 करोड़ कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 इटसेल्फ इज वेरी बैड। बहुत मुश्किल है बिकॉज आप उस पर नहीं सर्वाइव कर सकते। आज के टाइम में आप 60 पे 1 करोड़ नहीं कर सकते तो फ्यूचर में तो 1 करोड़ पे तो आप नहीं कर सकते। What about the sentiment of saving aggressively in your 20s versus YOLO जो या ये ना थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। आपने एक सिस्टम बनाई है कि आप सेव कितना करने वाले हैं, उसके बाद ना जो बचा है उसको आप एक्सपेंस करेंगे, बट वो रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए। आपका अगर आज ही लॉस्ट हो गया उसमें और फ्यूचर बना भी लिया तो क्या मतलब है, जब आप उस एज में पहुंचने वाले हैं और वहां पर आप कुछ एंजॉय भी नहीं कर सकते, वो पैसा आपके लिए कोई वर्थलेस है, सिर्फ सर्वाइवल का पैसा है। Gen Z doesn't care if the stock market dumps or if there is recession. I'd argue that they would be happy if the stock market crashed 90% or if the housing market collapsed. They'd have nothing to lose. I don't agree. I see a lot of Gen Z people investing in stock market. If you have a stake in the stock market, you'll certainly worry if it crashes. So I don't know why this statement. They're not immune to what is happening around them. I think they are more informed, they are more interested, they are more intelligent. So again, I doubt the statement. ये tweet है ना, tweet में कोई कुछ भी लिख सकता है. Save all your life. Live like a miser. Don't drink at Starbucks. Don't wear branded clothes. Don't go to fancy places. Save every rupee and invest that in stocks and mutual funds. कुछ भी. All of this is stupid advice. If you punish yourself, you're never going to be consistent with the investing process because you'll give up on this punishment sooner or later. सब लोग ऐसा सोचेंगे तो कंज्यूम कौन करेगा? कि हमारा सेविंग तो कोई कंज्यूम कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है. इवन इफ यू सी जीडीपी ग्रोथ,
right? What I spend is somebody's income. वो जैसे I'll give another example. सब लोग बोलते हैं कि लोन नहीं लेने का, लेकिन इंडेक्स का 30% बैंक्स है. अगर आप किसी को बोलोगे कौन सा शेयर लेने का, तो बहुत पॉसिबल है कि लोग बोलेंगे आपको बैंक का शेयर लेने का. अभी सबको बैंक का शेयर लेके पैसा बनाने का, लेकिन लोन किसी को नहीं लेने का. बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बहुत आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसी जगह है जहां पर जब आता है कोई तो उससे लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता, आसान रास्ता स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का यही है. कोरोना में कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते करते स्टॉक मार्केट करने लगे. उन्हें ये समझने लगा कि जितनी कंपनी सैलरी दे रही है उससे ज्यादा तो मैं खुद कमा रहा हूँ. बट जब मार्केट डाउन जाता है तब समझ में आता है कि जो काम कर रहा था वही ठीक है, ये मेरा काम नहीं. इतना आसान भी नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना. पैसा टिकता नहीं है यहाँ पर. वो 6 महीने में खूब कमा सकते हो. एक मार्केट क्रैश आता सब साफ. एक कोरोना आया, पिछले 10 साल के ट्रेडिंग वालों के पैसे जीरो हो गए. हर बार आदमी में नया ट्रेडर पैदा होता है. पुराना ट्रेडर तो कसम ही खा लेता है, इतने पैसे लग जाते हैं उसके कि मैं कभी 6,000 नहीं करूंगा. और फिर 10 लोगों को और जाके बोलता है कि कभी 6,000 मत करना. ये नहीं बोलता कि मैंने सट्टा किया इसलिए पैसा लगा. Correct. India has no pension or social security. My retirement plan includes 100% stock portfolio, 0 FD gold real estate, 12-month emergency funds, health insurance for full family. What's your retirement plan? Well, my retirement plan is almost 90% और equities. 5% तो मैंने गोल्ड में लगाया हुआ है. टर्म कवर फॉर मी, इंश्योरेंस इज लाइक अ रिस्क कवर. तो मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है एंड एक घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो घर तो मेरे लिए जरूरी है. तो आप इस वाले प्लान को रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम सेइंग दैट गोल्ड इज लाइक द विष्णु भगवान ऑफ योर पोर्टफोलियो, प्रोटेक्टर ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो 5% तो गोल्ड मेरे हिसाब से जायज है. 15-20 ना जाए. डोंट गेट कैरिड बाय रीसेंसी बायस. एंड घर एक होना चाहिए खुद का. रेंटल यील्ड्स आई नो पीपल से, बट ये सब थियोरी होती है, अच्छी चीजें होती है, लेकिन जब खुद पे आती है तो हम बोलते हैं यार एक घर हो जाए. इफ यू आर स्मार्ट बाय 1 हाउस, इफ यू आर रिच बाय 2, एंड इफ यू आर अ फूल गो फॉर द 3rd. Love it. There should be no tax on income. At 1.4 billion consumer, flat 5% indirect tax is more than enough. It's just that you need to end corruption. Not agreeing with that. Corruption has reduced. Flat 5% not working anywhere in the world, and it's not work definitely in India because we don't have other resources. लोग काफ़ी बार दुबई से कंपेयर कर लेते हैं, राइट? कि दुबई में टैक्स नहीं है, इधर नहीं है. आप उसका इकोसिस्टम समझो, उसका कितना पॉपुलेशन है वो समझो. आप चाइना से कंपेयर करो, यूएस से करो. आई नो वी आर नॉट डेवलप्ड, आई एग्री विद दैट, बट अगर आप कोई दूसरी डेवलपिंग या डेवलप कंट्री से कंपेयर करोगे, ठीक है, वी आर नॉट पेइंग दैट हैवी टैक्सेस. ट्रस्ट मी, 2008 से मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ, एंड वी आर राइट नाउ इन वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया. काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आ रहा है. तो इवन जो बंदे का 50 लाख सैलरी है ना, वो 30% टैक्स नहीं भर रहा है. अगर उसका आप नेट टैक्स देखोगे ना, तो 22-20% पे अटक जाता है, बिकॉज यू आर पेइंग इन द स्लैब रेट. मतलब आपको एवरेज टैक्स रेट देखना पड़ता है. आपको क्या सिंपल करना है, आप कितना टैक्स भरे, डिवाइड बाय योर टोटल इनकम. दैट्स योर इफेक्टिव टैक्स रेट. Some see MACD, some see Elliott waves, some see Fibonacci, trend lines, moving averages, RSI. Still, nobody knows where the market is going. Technical analysis is a tool to measure risk-reward ratios, not predict. 100% राइट. और ये मेरा दोस्त ही है. ओह हाँ, वैसे दोस्त है इसलिए 100% राइट नहीं बोला है, बट इसकी ये बात में सच बात है कि अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझ लिया और उसको ही सिर्फ हैंडल किया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट होगा. मार्केट को तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. दैट इज द वेरी वेरी ट्रू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded